got no style of his own. You wishing that you was gone, throwing back the Patron. You ain't wrong because you'd rather be with me in the zone. Let's go. Sorry, your lady has been taken. You can find us up in the road with the flow shaking. And I ain't even the one that's bringing her home the bacon. You the one been talking about kicking my face in. Let's go. You can do whatever you gonna. My rebel persona that got me dressing red as I wanna. Ahead of you, stronger than fire, cause you dead as a coma. You sick of me, but I'm right here to put the medicine on you. Let's go. Got them all frightened of the Titan. You might spend too light to get fights in with a bison. It's so exciting, my fans real your wife, and I'll ruin your life when I produce a license. Let's go. Coming through the door, hella fast, never slow. Got the cash and the pedal to the floor. Let's go. If you wanna ride, let me know. We can slide on the low. What you standing there for? Let's go. If you're dipping what you made out the gate, let's roll, let's bounce, let's skate. Let's go to the road, let's go to the leg. Let's go. Boyfriend ain't talking about shit. Let's go. Up, squatting low like a kid. You know this Patron changed the whole motion of your shit. And I ain't gotta decide to proceed without a grip, so we can just do it moving in the song. Liking the skinny jeans and the kicks and Julie Wells, but I ain't in the pleas and the trick. I'm in the top, his Porsches and keys to the six. So sit back and let the engine breathe a little bit. Let's go. Coming through the door, hella fast, never slow. Got the cash and the pedal to the floor. Let's go. If you wanna ride, let me know. You can slide on the low. What you standing there for? Let's go. You can hate if you give me what you hate out the gate. Let's roll, let's bounce, let's skate. Let's go to the right, let's go to the left. Let's go. Your boyfriend ain't talking about shit. Let's go. कार के बारे में बताओ तो। ET35 raw turbo kit, Mishimoto intercooler, engine SCS exhaust. ये है मेरी गाड़ी। अरे उसे देखो तो जरा, वो SX कार है। हमारे लड़के तो सीख गए, स्पॉन्सर कार्ड मिलने लगी। अब आगे क्या क्रूगर? मुझे टॉप फ्यूल का पहला इन्फोरेसर बनना है। वाह! बेहतर होगा मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ लेकर रखूं ताकि जब तुम छा जाओ मैं उसे eBay पर बेच सकूं। चलो डैनी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। रिलैक्स माइकी, मैं यहाँ सिर्फ मिलने आया हूँ और कुछ नहीं। अगर ये फिक्स को पता चले कि तुम यहाँ आए हो तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वाह, देखे तो कौन आया है। अच्छा, तो राजा को सलाम ठोकने आए हो? टोनी, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मारपीट का इल्जाम लगा दोगे। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो क्रूगर, अब तुम टॉप डॉग नहीं हो। उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें भड़का रहा है। मैं मेरी धीमी कार के साथ तुम्हें टक्कर दूंगा, वो भी भारी पड़ेगा। तुम्हारी कार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो या चुप रहो। नहीं, आज नहीं। छोड़ यार। ओह अच्छा, तो तुम बस कार दिखाने आए हो? अच्छा, तो जाओ, जाकर लड़कियों की तरह अपने कार के पास खड़े हो जाओ, मॉडलिंग करो। मैं तुम्हारे जैसा डरपोक नहीं हूँ क्रूगर। जब मैं मैदान में उतरता हूँ तो भिड़ने तैयार रहता हूँ। ओह yeah! ठीक है, भिड़ जाते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? ओह yes! बच्चे, वाह वाह। छोड़ दो यार, इस बेहुदा आदमी को सबक सिखाना। इनके सोचने से हमें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो बस एक रेस देखनी है। डाउनटाउन में सभी यूनिट्स ध्यान दे, स्पेंसर में 10-19 की पेट्रोलिंग करनी है। मैंने अभी स्कैनर पे सुना, पुलिस आते ही होगी। इशारा करो। मैं नहीं करने वाला, ये बेवकूफी है। इशारा करो यार, 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा।
क्या तुम ठीक हो? जी। अच्छा, अपने हाथ ऊपर करो, तुम गिरफ्तार हो। अपने पैर फैलाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ उनके साथ रेस करने की इजाजत दी क्योंकि मुझे लगा इससे तुम मुसीबतों से दूर रहोगे। आखिर तुम्हारी जिंदगी को कोई मतलब मिल जाएगा, लेकिन अब बहुत हो चुका। अरे बाप रे, इस बार क्या गड़बड़ की? यार मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। मिस्टर अफशा, मुझे माफ कीजिए। क्या आप मुझे समझाने का मौका देंगे प्लीज? क्या समझाना चाहते हो तुम? तुमने 1 करोड़ की गाड़ी एक गैरकानूनी सड़क छाप रेस के लिए यूज की और उससे पुलिस की कार को एक टक्कर मार दी। इसमें क्या समझाओगे तुम मुझे? मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई तुमने है। गलती नहीं, बेवकूफी की है। ये पूरी तरह खराब हो चुकी है। तुम निकलो यहाँ से। मैं भरपाई कर निकल दूंगा। जाओ। चलो डैनी, चलते हैं। सॉरी मिस्टर अफशा। तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। दोस्त, तुम एक बैल की तरह हो। लाल रंग देखा कि भिड़ जाते हो और फिर किसी की नहीं सुनते हो। हाँ। निराश मत होना दोस्त, सब कुछ ठीक होगा। क्या? देखो, हम वाकई तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, सच में। बात यह है कि हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेज रहे हैं। क्या? तुम्हें बदलाव की बहुत जरूरत है। इन सारी बातों को पीछे छोड़ दो। आपने उनसे बात कब की? आज सुबह। इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब भरा है ना? नहीं, चौका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम हर बार नई मुसीबत खड़ी कर देते हो। रफ्तार का जुर्माना, रेसिंग और अब ये नया हादसा। अब अगली बार तुम क्या करोगे इसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। तुम मुझे एक ऐसे आदमी के पास भेज रही हो जिसे मैंने 5 साल से नहीं देखा है। वो शराबी है। नहीं डैनी, वो शराबी नहीं है। हाँ, अब तो ऐसे ही कहोगी। मुझसे जितना हुआ उतना मैंने किया और अब मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। मैं नहीं जा रहा। मेरी पूरी जिंदगी है यहाँ। मैं कतई नहीं जाऊंगा वहाँ। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम जा रहे हो, बात खत्म। कैसी हो लीज? हाय, कैसे हो? अच्छे लग रहे हो। तुम भी। कैसे हो बच्चे? हाय फ्रैंक। तो तुम सारा सामान रखना शुरू करोगे या नहीं?
वैसे पीछे जो कार है काफी अच्छी लग रही है। कौन सा मॉडल है? 2003 का होगा शायद। 2004। तुमने काफी बदलाव किए। मैं और मेरे दोस्त माइकी ने। अच्छा है, महंगी लगती है। तुम्हारा सौतेला बाप काफी अमीर लगता है। मैंने खुद खरीदी है। हम बेकार की बातें कम करें तो बेहतर नहीं होगा? अच्छा, तो तुम सोच कर आए हो कि मुझसे बात नहीं करोगे? जब तक मैं 18 साल का ना हूं तब तक। तब तक ही क्यों रुके हो? जाओ ना, अभी जाओ, अकेले रहो। तुम कितनी भी नफरत करो लेकिन ये नहीं ठुकरा सकते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अटके हुए हैं। समझ में आया तुम्हें? मैं कोई मशहूर आदमी नहीं हूं, ना ही बेहतरीन बाप बनूंगा या दोस्त बनकर गुजरे वक्त की भरपाई करूंगा। तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हें संभाल नहीं सकी। अब समझ में आया तुम्हें? बस बात खत्म। अच्छा, और मेरा क्या? तुम्हारी बात। तो ये है मेरा घर। आपके पास वो अब भी है? हाँ। खटारा की तरह चलती होगी ना? ठीक है, अब कुछ चीजें याद रखो। तो मेरे साथ रहना है तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, सारे काम खुद करने होंगे। खुद का खाना बनाना होगा, बर्तन मांजने होंगे, कपड़े वहां धो सकते हो। ये तुम्हारा कमरा है। कोई सवाल? मेरी कार बाहर निकाल सकता हूं? इतनी जल्दी क्या? तुम उसे चला नहीं सकते? मेरे लाइसेंस में लिखा है कि मैं उसे स्कूल या काम पर नहीं ले जा सकता। अच्छा, कहीं और भी है ना? ठीक है, अब सामान लगा लो। बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या करोगे इसके साथ? बस एक टर्बो अपग्रेड करना है, कोई खास बात नहीं। तो तुम्हें इंजन के बारे में सब पता है? हाँ? शायद आपसे भी बेहतर। बहुत बढ़िया। मुझे हमेशा एक और मैकेनिक चाहिए था लेकिन उतने पैसे नहीं थे। आपसे स्कूल के बाद तुम अपनी सारी होशियारी का इस्तेमाल यहाँ काम करने में लगाओगे। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। अरे यार,
ईंधन के नक्शे देखो। हवा और ईंधन का रेशियो अगर 11.5 से 1 तक हुआ तो ज्यादा हो जाएगा। ये ठीक नहीं है यार, हमें संभल कर करना चाहिए। यार मुझे 12.5 से 1 का रेशियो चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें ही संभालना होगा। जो भी। अब ईजीटी चेक करो। जी सरकार। ये देखो जान, कैसे हो मैक्स? तुम्हारी खटारा कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया, छुट्टियों में उसी पर काम किया। अच्छा, तो देखते हैं तुम्हारे काम का कोई असर हुआ या नहीं। बिल्कुल देखते हैं। टर्बो के साथ तो बहुत तेज है ये। उन्हें दिखाते हैं हमारा जलवा। क्या ऐसा करना जरूरी है जेक? जेक, रुक जाओ। जेक, संभल कर। ठीक है, हम जीत सकते हैं। जेक, अच्छा कर रहे हो। जेक, तुम बेवकूफ हो क्या? चल भी। बहुत बढ़िया। नहले पे दहला बेबी। तुम्हें हो क्या गया है? उन्हें चोट भी लग सकती थी। अरे कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार, अब तक नाराज हो? आउच! इनाम काफी अच्छा है ना? हाँ, सबसे बेहतरीन रेसिंग स्कूल है। सभी बेहतरीन रेसिंग टीम्स वहीं से नए ड्राइवर्स चुनती है। अगर तुम्हें हिस्सा लेना है तो तेज कार लगेगी। तुम उसकी चिंता मत करो। ओहो, अकड़ तो देखो भाई साहब की। पंगा नहीं। ओ, देखो लड़कों, एक और नया पंछी। ऐसे पोस्टर्स नहीं लगाने चाहिए। इन लड़कों को खामखा उम्मीद मिल जाती है जीतने की। मैक्स, काफी अच्छे से हारे तुम आज सुबह। मैं हूं मिस्टर ब्रिक्स। तुम नए नवेलों को अभी से बता दूं कि ये कोई आसान सा विकल्प नहीं है जिससे तुम आसानी से पास हो जाओगे। समझ गए तुम लोग? मेरा विषय बहुत ही कठिन है। जेक,
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं? हाँ, तुमसे। हाँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम मेरे क्लास में हो तुम्हें ध्यान देना होगा और जवाब देना होगा, समझ गए? जी सर। ठीक है। तुम इतने खुश लग रहे हो जेक, तो क्या तुम क्लास को कैम टक एक्विटेटेड वेरिएबल कैम टाइमिंग समझाओगे? ये क्या होता है? तुम बताओ। वैसे टॉर्शनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो वॉल्व टाइमिंग का इंटेक बदलते रह सकती है जिससे क्रैंकशाफ्ट घुमाया जा सके। वैसे मैं इंपोर्ट ट्यूनर वाला मैगजीन नहीं पढ़ता। वैसे सीटीए वेरिएबल टाइमिंग का इस्तेमाल न्यू मस्टंग जैसी घरेलू कारों में किया जाता है। तुमने वैसी कार चलाई है? सही जवाब। तुम्हारा नाम क्या है? डैनी। तुम्हारा पूरा नाम भी तो होगा? क्रूगर। तुम फ्रैंक के बेटे हो। उसने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम स्कूल से ज्यादातर गैर हाजिर रहते हो, लेकिन मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलेगा डैनी। नहीं। अच्छा, एक मिनट, तुम्हारा बाप फ्रैंक क्रूगर है? तो ट्रैक से दूर रहने की तुम्हारे पास एक और वजह है। मैं इस प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा ले सकता हूँ? तुम 18 साल से ऊपर हो? नहीं। अपने डैड से साइन ले आओ। आखिरी तारीख 2 हफ्ते के बाद है। डैनी, उन्हें नजरअंदाज करो। तुम्हारे डैड कमाल के रेसर थे। सभी नए चेहरों का ड्रामा क्लास में स्वागत है। मैं हूँ मिस पार्कर और हर नई क्लास की शुरुआत मुझे एक खेल से करना अच्छा लगता है जिसका नाम है पहले विचार। तो कौन पहले जाना चाहेगा? तुम सही कह रही हो जेसिका, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों को शॉपिंग करना चाहिए। तुम पीछे वाले लड़के। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? डैनी। डैनी, क्या तुम यहाँ कर खड़े हो जाओगे? और इसके बारे में कौन हमें अपने पहले विचार बताएगा? जेसिका, शायद तुम आज बहुत ज्यादा बात करना चाहती हो। तुम क्यों नहीं बताती अपने विचार? ये किसी दूसरी जगह से यहाँ आया है। बहुत अच्छे। और कुछ? उसने नाटक का विषय मजबूरी में चुना है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता ये लड़का शेक्सपियर के नाटक वगैरह पढ़ता होगा। मुझे भी नहीं लगता कि तुम पढ़ती होगी मिस मशहूर महंगी जीन्स वाली। उनके किसी भी एक नाटक का कोई किरदार बताओ। मैं 2 बता सकता हूँ, रोमियो और जूलियट। ये तो कोई स्कूल जाता बच्चा भी बताएगा। तुमने कहा था कोई भी पात्र। अब तुम्हारी बारी। ये कितना मुश्किल है। मेरा मतलब कितने महान किरदार है, जैसे कि मैकबेथ, शाइलॉक, डेस्डेमोनिया, ओथेलो, हैमलेट। तुम्हारी बारी। क्या ये सही बोल रही है? अच्छा जवाब दिया तुमने। पक। क्या मतलब? पक, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम का किरदार। वो शरारती था, रात को घूमता रहता था। क्लास के बाद गूगल पे शेक्सपियर के बारे में खूब पढ़ा लगता है। तो तुमने कैसे पहचाना कि मैंने मजबूरी में ड्रामा चुना है? मैं यहाँ नहीं आई थी तो मेरे साथ भी यही हुआ। मतलब तुम भी दूर से आई हो? कब आई? पिछले साल टैम्पा से। और तुम? एंसिनो। सुंदर वादियों से आए हो। तो यहाँ ब्रैडफोर्ड की संस्कृति कुछ अजीब नहीं लगती? ये जगह बकवास है। धीरे धीरे पसंद आने लगेगी। उम्मीद करता हूँ। स्कूल के नए साल की शुरुआत पर मैंने पार्टी रखी है, तुम्हें आना होगा। हाँ ठीक है, कोशिश करूँगा। तुम ज्यादा घुलते मिलते नहीं हो क्या? वैसे ये रहा पता, मन करे तो आ जाना। तुमने देर कर दी। यहाँ 15 मिनट से 3 कार ट्यून यूपस के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।
चलो शुरू हो जाओ, इसके बाद और भी 2 करनी है। मुझे पुरानी कार्स पे काम करने की आदत नहीं है। पुरानी? तुम्हें से ठीक करना आता है? मैं प्रोग्रामेबल इंजन मैनेजमेंट डिस्टेंस के बारे में जानता हूँ, कार्बोरेटर्स और मैकेनिकल इग्निशन के बारे में नहीं। उससे मदद मिलेगी, फीलर गेज का इस्तेमाल करो। वो बेकार चीज आप कहाँ रखते हैं? पता नहीं, लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ी। लो, इसमें लिखो। मैं रात में खाने के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम आओगे क्या? मैं खा चुका हूं। ठीक है। Hey, Danny, Danny. अब याद आया, मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है। उसे अपनी जेब में रखो यार, वो पुरानी बात है। हमें पुरानी कहानियां पसंद है। मैं मैक्स हूँ और ये हैरी। तो तुम्हारे जैसा रॉकस्टार यहाँ क्या कर रहा है? जिस लड़की ने ये पार्टी रखी है उसे जानते हैं? शायद हम तुम्हारे साथ अंदर जा सकते हैं ना? बेशक। ओह, क्या बढ़िया पार्टी है। तुम्हें कसरत करनी चाहिए थी। चल यार, कुछ पीने को देखते हैं। तुम्हें चाहिए? तुम ले लो। ठीक है। पार्टी तो बेहतरीन है जैसिका, मानना पड़ेगा। जेक कहाँ है? तुम जानती हो रेचल, हमारी दोनों डेट्स बेकार रही। मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन उसने तुम्हारे स्तर को बढ़ाने के लिए क्या क्या है जरा देखो तो। इस पार्टी में सिर्फ बड़े लोग आए हैं। अरे बाप रे, क्या वो ड्रामा क्लास वाला लड़का है? क्रूगर? तो तुमने उसे यहाँ बुलाया? सोचा इसी बहाने उसे लोगों से मिलने का मौका मिल जाएगा। वैसे उसने जान पहचान करना शुरू कर दिया है वहाँ टेक सपोर्ट वाले लड़कों के साथ। तुमने उन्हें भी बुलाया था क्या? किसी को तंग तो नहीं कर रहे ना? जेसिका, एंड्रूज भी आया है। वो बटला, तुमने उसे देखा है? वो बहुत ही बटला है। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ है। हाय। अरे तुम आ गए, मुझे नहीं लगा था तुम आओगे। तुमने मुझे खास तौर पर न्योता दिया, इसलिए मैं काम को रोक कर यहाँ आया हूँ। और मुझे बेहद खुशी हुई। शुक्रिया, मेरा बॉस 1 नंबर का खड़ूस है। तो तुम आज यहाँ बाहर हो, अपने उस खटारा गैराज में नहीं। पुराने दिनों की याद आ गई। फ्रैंक क्रूगर, क्या ये तुम हो? बिना लड़खड़ाए कैसे चल रहे हो मेरे भाई? यहाँ तुम्हारी देसी दारू नहीं मिलती। शराब को छोड़े 1 साल हो गया जिमी। ओह, अच्छा ठीक है। तुमने एक और नई कार ले ली? क्या बात कर रहे हो तुम? वही पुरानी हमेशा वाली तो है। हाँ, याद आया। इसकी हेडलाइट्स अपने कार के आईने के पीछे देखता था। अच्छा मजाक कर लेते हो। कैसे हो यार?
कैसा चल रहा है सब कुछ? तो तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पे आएंगे तो वो गुस्सा नहीं होंगे? मजाक कर रहे हो क्या? मेरे सौतेले डैड का कहना है कि ऐसी पार्टी से दोस्ती बढ़ती है। हाँ, मेरे तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। क्या तुमने जेसिका को कहीं देखा है? वो वहाँ खड़ी है। तो क्या इसलिए तुम्हें ब्रैडफोर्ड आना पड़ा? कुछ ऐसे ही समझो, मेरे डैड यहाँ रहते हैं, पता नहीं क्यों। ये इतनी बुरी जगह भी नहीं है ना? अच्छी लगने लगी है। जेक, इस लड़के के साथ तुम क्या कर रही हो? बात कर रही हूँ। सिर्फ बातों तक ही सीमित रहना। मेरे बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो जेक, क्योंकि तुम नहीं हो। देखो, हमारे बीच झगड़े हुए होंगे क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं समझ पाए। वाकई? कैसे? क्योंकि तुम सारा वक्त अपने और अपनी कार के बारे में बात करते रहते हो। तो उसमें बुराई क्या है? अब बताओ। लड़कियां ऐसी ही होती है, क्या चाहती है उन्हें ही पता है। ठीक है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे रोकोगे? शांत हो जाओ, समझे? यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत देर हो गई है। अरे बाप रे, बाप रे। अगर हमसे दोबारा पंगा लिया ना तो तेरी हड्डी पसली। हे भगवान, कोई चल चल, एक बार और। उठ उठ। आखिर शुरू कर दिया ना? मारो मारो। रुक जाओ। कोई रोक लो। डैनी रुक जाओ। डैनी रुक जाओ। ओ, वो सुपर हीरो की तरह है। अरे देख, भाग रहा है। पकड़ पकड़ उसको, पकड़। जेक रुक जाओ। आज तो ये गया काम से। Come on! वो बच के नहीं निकल सकता। लड़कों, भागो। हम इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मेरे कार में दो बेवकूफ बैठे हैं। पुलिस ना हो। अच्छी बात है कि वो अपने गुस्से पर धीरे धीरे काबू पा रहा है। लेकिन हर रोज वो मुझे गुस्सा दिलाता है। उसका क्या? मेरी तरह शरारती है वो। तो मुझसे बदतर थे, तुम जानते हो। वो एक अच्छा लड़का है, उसे थोड़ा सा समय दो। उम्मीद करता हूं कि मैं उसे परेशानियों से दूर रखूं। तुम्हें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हट जाओ।
एक गुरुगर, गाड़ी रुकाओ वरना तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। उसे ओवरटेक करो। क्या नाटक है, बस पकड़ ही लेंगे। आखिर वो कहाँ जा रहा है? वो उस तरफ जा रहा है। रुक जाओ क्रूगर, रुक जाओ। चलो भी। पकड़ लिया दोस्तों। अगली बार नहीं बचेगा वो। अगर अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। मेरी कार खराब हो गई है, आप छोड़ देंगे? शायद बहुत तेज चला रहे हो तुम। मैं खुद ही घर वापस आ जाऊंगा। अरे दोस्त, क्या ये सच है तुमने जेक की मस्टैंग को हरा दिया? भाई तुम असल में कौन हो यार? क्रूगर, तुम यहाँ आकर आगे बैठो। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं ईंधन और हवा के प्रमाण के बारे में। दोस्त, तुम जेक से तेज हो यार। खाने पर सभी लोग यही कह रहे थे। हाँ, उसकी कार में और 2 लोग थे जिसका मुझे फायदा हुआ, लेकिन मैंने काफी तेज चलाई। यार वो शहर का सबसे तेज रेसर है, उसे स्ट्रीट रेस में कोई हरा नहीं सकता। उसके डैड कैंडल परफॉर्मेंस के मालिक है, उसके पास पूरी दुकान है गाड़ियों से जेक भरी। ने अपनी रफ्तार से स्कूल का नाम रोशन किया है। हमारी फुटबॉल टीम बकवास तुम है। ड्रैग रेसिंग करते हो ना? हाँ, मुझे अपनी कार पर थोड़ा और काम करना है। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या शुरू किया है? दूर हटो एक दूसरे से। मेरी क्लास में मारपीट नहीं होगी। अगर तुम दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हो, एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हो, तो वो ट्रैक पर करो। रास्ते पर रेसिंग करना बंद करो। तुझे स्कूल के बाहर मिलता हूँ। हाँ। स्कूल के बाद मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, बाद में मिलते हैं। डैनी। हे। हाय। होठ की जख्म कैसी है? ठीक है। स्कूल का सबसे मशहूर लड़का बनकर कैसा लग रहा है? कोई मुझे जानता नहीं था तब बेहतर था। शुक्रिया। तुम जानती हो, उसका तुम्हारे साथ का बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा। शेक्सपियर के पग जैसा। ये तो अच्छी बात है ना? मेरे साथ डेट पे चलोगी? ख्याल वैसे बुरा नहीं है। लेकिन मेरी कार खराब हो गई तो तुम्हें अपनी लानी पड़ेगी। वही कार जिसके सभी सपने देख रहे हाँ, हैं। किसी को बताना मत। ये महीने के आखिर में है। मजाक तो नहीं कर रहे तुम?
जीत का इनाम है NHR पमोना रेसिंग स्कूल में भर्ती, जहां पर सभी कुछ दिनों के लिए तुम्हें रेसिंग से दूर रहना चाहिए। जानता था आप यही करेंगे। जबान संभालो अपनी, खासकर तब जब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैंने 7 साल तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, मुझे बस आपकी दस्तखत चाहिए। तुम्हें मेरे साइन चाहिए तो दोबारा रास्ते पर रेसिंग मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या बात है, तुम्हारे पास ही तेज कार है, ऐसा मत सोचना। इसमें मैनुअल गियर है। ऑटोमेटिक पोर्शे चलाने में क्या मजा। ये सुनकर शायद मेरे लिए तुम्हें पसंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। बेल्ट पहन लो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? चक ई चीज। चक ई चीज? अच्छी जगह है। क्या पहले कभी गए हो? कभी नहीं। तो तुम्हें कार चलाना किसने सिखाया? अच्छा चलाती हो। बाकी लड़कियों के मुकाबले। देखो, तुमने कहा, मैंने नहीं। हाँ मैं एक पुराने ड्राइव इन में काम करती थी। मेरे पास पुरानी होंडा सिविक थी। वो मेरे डैड की है। जब उसे पहली बार घर ले आए वो किसी बच्चे की तरह खुश थे। कई साल पैसे जमा करके खरीदी थी। मेरी मॉम बहुत गुस्सा थी। वो उसे पैसों का गैर इस्तेमाल समझती थी। मुझे अभी भी उस नए लेदर की खुशबू और एहसास याद है। कहते हैं कि पोर्शे के लेदर की अपनी एक महक होती है। मैं नहीं चाहती वो खुशबू उड़ जाए, इसलिए मैं इसे सिर्फ खास मौक़ों पर चलाती हूँ या तब जब मैं परेशान होती हूँ। उन्हें गुजरे कितना वक्त बीता? 3 साल। माफ करना। क्यों? मैंने सुना तुम्हारे डैड नास्कार के लिए रेसिंग करते थे। हाँ, एक दिन उनकी कार 150 की रफ्तार से दीवार से टकराई और उनका पैर टूट गया। बाप रे। हाँ, उसके बाद सब कुछ बदल गया। वो किसी भूत की तरह बन गए थे। उनके होने का एहसास तो होता था, लेकिन वो सिर्फ तभी दिखते जब वो दिखना चाहते थे। लेकिन अब तुम दोनों नजदीक हो, है ना? हाँ, वैसे हम लोग अब तो एक घर में रहते हैं, लेकिन पता नहीं, कुछ अजीब है। क्या अजीब है? बात करने की कोशिश करना। उन्हें कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कह नहीं पाते। ये कोई परेशानी की बात तो नहीं, सच में। तुम्हें ड्राइव पर चलना है? हाँ। चलो। Good night. Good night. क्या हुआ? क्या आप मेरी कार को चेक करेंगे? शायद इस शनिवार को मुझे अभी ये हेड गैस्केट बदलना है, जितनी जल्दी हो सके। छोड़िए, मैं खुद ही चेक कर लूंगा। आह।
क्या परेशानी है? फ्यूल सही मिल रहा है, स्पार्क भी सही है, टाइमिंग बेल्ट टूटी नहीं है, वैक्यूम लाइंस भी ठीक है। समझ नहीं पा रहा। मैं हमेशा माइकी के लैपटॉप से जांच कर लेता था, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकते हैं। चलो अब कोशिश करो, अब चालू करके तो देखो। हाँ, तुम क्रैंक सेंसर की जांच करना भूल गए थे, इसीलिए वो ठीक से नहीं चल रही थी, और तुमने जो नए बदलाव किए उसकी वजह से भी बिगड़ गई। मैंने वो चेक करने की सोची भी नहीं। 2.5 है ना? हाँ। अच्छा, तो तुम छोटे इंजेक्टर्स को बड़े टर्बो से थका रहे हो। टॉप बैंड पर ये ठीक से नहीं चलती होगी। पिछली बार जांच की थी तब लाल रेखा से जोरदार आ गई थी। और जोरदार चल सकती है ये कह रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब अगर ये चलने लगी है तो तुम जाकर के जरा घूम करके आ जाओ। कहाँ जाऊँ? केंडाल्स के यहाँ। आप चाहते हैं प्रतियोगिता के लिए कुछ सामान लाऊं? प्रतियोगिता नहीं, धंधे का काम है, समझे? और पेप बॉयज भी यहाँ से बहुत ही दूर है। कोई बात नहीं। शुक्रिया। सुनो, ध्यान रहे तुम्हें कोई देख ना ले। मेरी बात समझ में आई? तुम्हें यकीन है सब ठीक है? इसके 1/16 हिस्से में रेस गैस है, बहुत बढ़िया टाइमर के साथ। ये बिल्कुल तैयार खड़ी है। होनी भी चाहिए, आज रात को कॉलेज में मुकाबला है। उसे हरा दो बेटा, अगर मेरे नाम की इज्जत रखनी है तो। कैसे हो? तो हम 7:30 बजे मिल रहे हैं ना? हाँ, असल में आज मैं शायद नहीं मिल पाऊंगा, मुझे बहुत काम है। ओह, मुझे माफ कर दो जेस। क्या हम कल मिल सकते हैं आज के बजाय? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया, तुम कमाल हो। थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है? बाय। दोस्त, तुम पागल हो, अगर जेक ने देख लिया तो मार देगा तुम्हें। रिलैक्स, मैं बस देखने आया हूँ। ठीक है। चलो चेक, तुम ये कर सकते हो। तुम्हें
सीखने मिलेगा बच्चे। रेचल, मुझे लगा तुम और वो नया लड़का आज रात बाहर जाने वाले थे। वो नहीं आ पाया, उसे बहुत काम था। अरे नहीं, वो यहाँ रेस देखने आया है, मैं उसी को देख रही हूँ। वो पहले आया, मतलब रफ्तार होगी 120। शायद वो 11th मॉडल चला रहा था। दोस्त मुझे लगता है वो 11th ट्रैक पे चलाएगा, आज 10th चला रहा है। ठीक है, मैं तुमसे बात ठीक है। जरा देखो तो कौन है। शर्माना बंद करो क्रूगर और हेलो बोलो। क्रूगर, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। मुझे लगता था कि खामखा हमने झगड़ा मोल लिया है। मैं नहीं जानता तुम इतने मशहूर हो। मुझे जानकारी मिली कि तुम एलए में काफी मशहूर थे, लेकिन रास्तों के छिचोरों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे तुम? लेकिन तुम्हारी जीत ने तुम्हें एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप दिलवा दी थी, जो देखकर मैं हैरान हो गया था। और ये शराबी फ्रैंक क्रूगर का बेटा निकला। चुप रहो जेक। और फिर मुझे पता चला कि कुछ महीनों बाद तुमने अपनी स्पॉन्सर की कार ठोक दी, और फिर यकीन हुआ कि तुम ही क्रूगर के बेटे हो। और अब सबको ये गलतफहमी है कि तुम बहुत तेज हो, शायद मुझसे भी तेज। उसको भी दूर कर देते हैं। उस रात तो तुम मेरे पास भी नहीं आ सके। मेरी कार में 3 लोग थे, लेकिन मेरे पास फ्यूल बूस्ट नहीं था। ठीक है, तो हो जाए मुकाबला। बार बंद होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी है, तो तुम इसके बाद अपने बाप को घसीट कर घर लेके जा सकते हो। इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो, ताकि अपने शराबी बाप को घर लेके जा सकते हो। ये बुरा था, मुझे तुम्हारे बाप की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मालिक कहता है कि वो अपने काम में बहुत अच्छा है। तुम्हें रेस करनी है ना? चलो शुरू करते हैं। शांत हो जाओ डैनी। ये हुई ना बात। ठीक है। ठीक है। अब चलो। चलो भी। और तेज चलो। नहीं। अरे नहीं, जीत जाएगा। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम लगभग हारने वाले थे, तुम जानते हो। लगभग का कोई मतलब नहीं। और अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें और बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। पुलिस पुलिस! भागो भागो भागो! जेसिका! धत तेरी!
लगता है वो कहीं छूट गए। तो तुमने उसे कितना अंतर से हराया? कुछ ज्यादा नहीं। तुम लगभग हारने वाले थे, तुम जानते हो। लगभग का कोई मतलब नहीं। तुम तूफानी थे और चौथे गियर में तुम उड़ गए। क्रूगर, केंडाल, मेरे पीछे आओ। इन रकानों को 871 तक भर दो। चलो मेरे पीछे आओ। चलो। तुम दोनों क्या सोच रहे थे? मैं नहीं जानता। मैंने कहा था कि मुकाबला सिर्फ ट्रैक्स पर करो। अब मुझे तुम्हारे डैड्स को बताना पड़ेगा। मेरे डैड ने तो क्रूगर को हराने पर पार्टी रखी थी। फिर भी मैं उनसे बात करना चाहूंगा। अब तुम अपना खाली दिमाग लेकर क्लास में जाओ। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है डैनी, तुम्हें पता है? मुझे लगा था कि तुम अक्लमंद हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? मुझे माफ कीजिए। क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं सोच रहा था कि तुम्हें रेस करने के लिए हाँ कह दूं। वो अपना होमवर्क कर रहा है, वक्त पर आ रहा है, शायद मुझे नरमाई दिखानी होगी। मुझे चाबी दो, क्योंकि तुम बदतमीज लड़के से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, मुझे जिम्मेदारी के बारे में भाषण मत दीजिए। आपने अपने बीवी और बच्चे को छोड़ दिया था। तुम 17 साल के हो, तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है। आपको आपके पिताजी छोड़ के जाते तो आपको कैसा लगता? मैं महज 10 साल का था। हाँ, तुम तब मुझसे बात करना जब 15 साल की मेहनत एक गलती की वजह से तहस नहस हो जाए। आपको आपके पास जो था उसके बारे में सोचना चाहिए था, ना कि जो गवाया उसके बारे में। बहुत बकवास सुन ली, हंगामा मत करो। मुझे चाबी दो। तुम ड्राइविंग नहीं करोगे। ड्राइविंग छोड़ दो। मुझे क्या लगता है कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला जो आपको कभी नहीं मिल पाया। मुझे अपनी चाबी दो। चाबी दो मुझे। हाय, जेसिका घर पे है? क्या चाहिए तुम्हें डैनी? मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं वहाँ रेस करने के लिए नहीं गया था। तो किस लिए गए थे? मैं देखना चाहता था मेरे प्रतियोगी कैसे हैं। तो ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं जानता। जब मैं एलए में था तब मेरे पास एक स्पॉन्सरशिप थी, बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप। अब मैंने वो गंवा दी है। कैसे? वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब मैंने हाई स्कूल के मुकाबले के बारे में सुना तब मुझे ऐसा लगा कि यही वो दूसरा मौका है जहां मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मुकाबला जीतकर जब तक यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचा है कि जिंदगी में रेसिंग को छोड़कर भी कुछ जरूरी चीजें हो सकती है डैनी? मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ और तुम हो कि मेरी सुन ही नहीं रही हो। अगर ऐसा ही लगता है तुम्हें तो तुम जा सकते हो। सच में? चले जाओ।
यार ये क्या हुआ? उफ। हाँ, अब उफ। क्या है? डैड, आपकी मदद चाहिए। तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सच में ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ था? किसी ने ब्रेक्स के साथ छेड़खानी की है। क्या सोच के गाड़ी चला रहे थे जो ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि किसी ने मेरे ब्रेक्स के साथ छेड़खानी की है। हमेशा किसी और की ही गलती होती है ना। तुम्हारी उसमें जान भी जा सकती थी। तुम सोचते क्यों नहीं हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चलो मेरी मदद करो। हेलो मॉम, डैनी, क्या मैं घर आ सकता हूं? ओह डैनी, अगर ये तुम्हारे लिए सही नहीं होता तो मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ जाती। वो मुझसे नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। उन्होंने ही तुम्हें वहां बुलाना चाहा था। डैनी, उनसे बात करो। वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। मुझे माफ करो मॉम। मैं जानती हूँ। I love you. I love you too. आप छोड़ के क्यों चले गए? मैं बिखर गया था। मैंने सब बर्बाद कर दिया था। दूसरे स्थान पर आकर मैंने काम और परिवार के बजाय मैंने पहले आने की कोशिश की थी। वैसे क्या तुम्हें याद है कि जाने से पहले मैं तुम्हें स्कूल से लेने आया था? नहीं। तुम्हें 104 डिग्री बुखार था। स्कूल की नर्स ने हमें कॉल किया था। मॉम काम पर थी। मेरे पास तब काम नहीं था क्योंकि खैर तो मैं वहां पहुंचा। लेकिन वो लोग तुम्हें मुझे नहीं दे रहे थे क्योंकि सुबह के 10:30 बजे तक मैंने आधी बोतल खत्म कर दी थी। मुझे वो याद नहीं है। जानते हैं मुझे क्या याद है? वो वाकया जो आप इस कार से मुझे घुमाने ले गए थे। मुझे पेट में गुदगुदियां हो रही थी। रफ्तार का वो एहसास कितना अलग था, कमाल का था। पहली बार मैं डर गया था लेकिन मैं सुरक्षित महसूस कर रहा था क्योंकि आप कार चला रहे थे।
एक बात कहूं, शायद ये सुनने में कड़वी लगे, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं पिछले कुछ साल तुम्हारे साथ नहीं था, क्योंकि तब मेरी हालत और भी खराब थी, तुम मुझसे और भी नफरत करते। मैंने आपसे नफरत नहीं की, कभी भी आपसे नफरत नहीं की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी मिलना भी अच्छा होता है। हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए था। शुक्रिया, मैक्स मुझे घर तक छोड़ देगा। अच्छा, हे क्रूगर, तुम्हारी कार कहाँ है? कुछ नए बदलाव किए क्या तुमने? वो खराब हो गई है दोस्तों, मैं आउट हूं। फर्नांडो कहाँ है? उसे यहाँ किरदार निभाना था। मुझे बेन की जरूरत है। वो बाथरूम में है। कैसा मजाक है। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा डैनी। ठीक करने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अपने शब्दों में कि बेन क्लेयर से क्या कहना चाहता है। हाँ, ठीक है, याद रखो कि वो एक पक्का जुआरी है और उसने अभी अभी गलत घोड़े पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है और अब वो उसे बता रहा है। शायद वो कहेगा कि मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? डैन, उसने अभी अभी उसकी शादी की अंगूठी बेच दी है। तुम्हें इससे कुछ बेहतर कहना होगा, कोशिश करो। हाँ, वो कहेगा कि उसने बेवकूफ़ी की और उसकी बुरी आदत ने ही उसे बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छे, और क्या? और वो कहेगा कि अगर उसकी सुनता तो शायद अच्छा होता, और वो कहेगा शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। हाँ? ये तो पुरानी याद है। वैसे पिछली बार इसे तुमने कब चलाया था? हाँ, सोचा इसकी धूल साफ करके अपने बेटे को स्कूल छोड़ दूं। सुना ही होगा कि हमारे बच्चे उस रात भिड़ गए थे, बिल्कुल जैसे हम भिड़ते थे। फर्क इतना ही है कि कैंडल जीत गया। सुना है फर्क थोड़ा सा था। वैसे तुम्हारे लड़के को जीतने की उम्मीद नहीं थी। जेक के वीएट के पीछे आधी दुकान काम पर लगाई है मैंने। तुम्हारा बेटा हारेगा। हाँ हाँ, धंधे के लिए अच्छा है। जीत गया तो बाकी के सारे बच्चे आके उसके पैसे उड़ा देंगे। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे बेटे का रेसिंग में कुछ भविष्य है। हे, तुम अपने दुकान का नाम क्रूगर एंड सन्स रख ही सकते हो। एक बात कहूँ जिमी, बाजार से लाकर महंगे पार्ट्स लगाना कार में एक अलग बात है, पर वो काम कैसे करते हैं दूसरी बात है। देखना यह है कि क्या वो काम सही से करते हैं या नहीं। बेवकूफ कहीं का।
हाय सन। याद रखो सब लोग कि आज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आखिरी दिन है। परमिशन लेटर मुझे दो। मुझे खुशी है कि तुम हिस्सा लोगे। तुम लोग मेरे पिट क्रू का हिस्सा बनना चाहोगे? बिल्कुल यार। हमारे पास 3 दिन है लड़कों, और हम इसकी शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं, ठीक है? 2 हाथ और मदद के लिए मिल जाए तो। शुक्रिया। 2 फेंडर्स, फ्रंट क्रॉस मेंबर, रेडिएटर सपोर्ट्स, 2 AR इंटरकूलर, मोटर माउंट्स और पूरा खर्चा हुआ बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तुम सब जाओ, आराम करो। कल स्कूल में दोबारा मिलेंगे। हाँ, तुम्हें भी। तुम अब भी मेरी ब्यूक में दिलचस्पी है? हे फ्रैंक, वाह कितने समय बाद दिखे यार। अच्छा लगा दोस्त। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ पार्ट्स की जरूरत है अपने बेटे के लिए। अरे वाह। हाँ, वो हाई स्कूल के मुकाबले में हिस्सा ले रहा है। आपने ब्यूइक बेच दी? हाँ। बाकी की चीजें लेने के लिए काफी पैसा इकट्ठा हो गया है। उसे आपने अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी। अतीत को भूलकर आगे देखने का वक्त आ चुका है। शुक्रिया डैड। इतना तो कर ही सकता हूं। चलो, सामान निकालने में मदद करो। दाएं बटन से लाइन की सफाई हो जाएगी, बाएं बटन से नाइट्रस तैयार रहेगा। केंडल के पास इससे दुगना मीटर है और सुपर चार्जर है। तुम्हारे अंगूठे के नीचे 200 शॉट हैं। जब हरे रंग का इशारा हो जाए तो उसे दबा देना। पूरे समय से दबा कर रखना। हाँ, GT40 मेटल्स, क्या आप मुझे इससे बेहतर कीमत नहीं दे सकते? रॉकेट फ्यूल। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। बेहतरीन आवाज है इसकी। मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है। पूछो मत। गैरेज की अच्छी पब्लिसिटी होगी इससे। हाँ, वो इस जगह को एक इंपोर्ट शॉप में बदलना चाहता है। बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। कल रेस करेंगे।
कैलिफोर्निया हाई स्कूल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। 65 विद्यार्थियों ने 32 हाई स्कूल्स में से हिस्सा लेकर इसे अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला बना दिया है। सबसे ज्यादा हिस्सा लिया गया है ब्रैडफोर्ड हाई स्कूल से। अपनी नजर जमाए रखे शहर के चहीते जेक केंडाल और उनकी पूरी केंडाल परफॉर्मेंस सेंटर्स की टोली पर नए अनोखे सहभागी है डैनी क्रूगर 2.5 लीटर 4 सिलेंडर ऑल व्हील ड्राइव सुब्रू STI के साथ। इस मुकाबले में 4 सिलेंडर्स वाली एक ही गाड़ी है और उसका मुकाबला होने वाला है सभी बड़े बड़े V8 से। देखते हैं इस छोटी सी सुब्रू के पास कुछ कर दिखाने की क्षमता है भी या नहीं। हम सारे स्पॉन्सर्स के शुक्रगुजार हैं, जैसे कि ग्रैंड स्टीयरिंग व्हील स्प्रेडर। तुम लोग तैयारी करो, मैं नाम दर्ज करके आती हूँ। सबसे पहले राउंड में हमारे सामने है मीगल सैनिज उनके पुराने टर्बो डीजल ट्रक के साथ। को इससे तेज जाते हुए देखा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज ये कमाल कर रही हैं। बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुम्हारा खानदान हारने के लिए बना है। ओह, लगता है तुमने गलत टीम को चुन लिया जेस। मुझे लगता है मैंने गलत दोस्त को चुन लिया। इस सब बातों को भूल जाओ, सिर्फ रेस पर ध्यान दो। हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया, स्टीयरिंग लाइन पे चलते हैं। वार्म अप राउंड लगभग खत्म हो चुका है। तुम्हें बस 13 सेकंड्स में खत्म करना होगा, ये इतना मुश्किल नहीं। ठीक है। वार्म अप राउंड की ये आखिरी रेस है और हमारे सामने है डैनी क्रूगर और उनके SCI। उसके विरोधी है एलेक्स डॉड और उसके रेट्रो फोर्ड मस्टैंग जो कि वॉशिंगटन हाई स्कूल से हैं। उस धुएं को देखिए, को चिकना बनाकर स्टार्टिंग लाइन से ज्यादा रफ्तार पाने की कोशिश में है। सामने जब सुब्रू हो तब अपने टैच को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है। शुरुआत में लड़खड़ा गया और मस्टैंग आगे निकल गई। क्या क्रूगर उसे पकड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। एलेक्स डॉट 12.29 के वक्त से पहले ही आ गया। डैनी क्रूगर जैसे तैसे पास हो गए हैं 12.98 के साथ। बाएं हाथ का खेल है। जानता हूँ ट्रैक रास्ते से ज्यादा चिपचिपा है, मुझे जिसकी आदत नहीं है। कम से कम मैंने रफ्तार तो रखी। रेस में तुम्हारा समय कम होते दिखाना होगा। तुम्हें 11 तक पहुंचना होगा। अगर एक और रेस हारे तो हम बाहर हो जाएंगे। रेस पर ध्यान दो। सभी रेसर्स के लिए तालियां बजाएं और आप पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने है ग्रांट कॉनन अपनी 1959 ओल्ड मोबाइल 442 में है। ग्रांट छुट्टियों भर मेहनत करता रहता है और बता दो दोस्तों, ये सिर्फ दिखावे की कार नहीं है। उनका सामना होगा जेक केंडल और उनकी 2011 मस्टैंग GT से। दो बेहतरीन रेसर्स को एक दूसरे से टक्कर लेते देखना वाकई हैरत अंगेज होगा। कर दिया है। जेक काफी आत्मविश्वास के साथ आए हैं।
कार अब टुकड़ों में घर लौटेगी। ये केंडाल 10.18 के समय से और 127 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जीत गए हैं। अगला मुकाबला है डैनी क्रूगर की SCI और केविन पिकारा की 1970 चेवी नोवा के बीच। क्या डैनी इस बार सही शुरुआत कर पाएगा? डैनी ने अच्छी शुरुआत करते हुए नोवा को पीछे छोड़ दिया है। और उसने कर दिया। डैनी क्रूगर 11.40 के समय से 121 प्रति घंटे की रफ्तार से अगले राउंड में दाखिल हुए हैं। 4 छोटे सिलेंडर्स के बावजूद करके दिखाया। एंड्रिया फॉस्ट और उसकी आकर्षक गुलाबी टॉर्च को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये लड़की पूरी जिंदगी रेसिंग करती आई है और इसे लड़कों को अपने पीछे भगाना खूब आता है। उसे रेस करते देखना मजेदार होता है। फौज भी अगले राउंड में दाखिल हुई। दोस्तों, मुकाबला काफी तगड़ा लग रहा है और सभी कमाल कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन जीतेगा। हे, अरे कैसी हो तुम? कैसे हो? अच्छा लगा। तुम कैसे हो? तुम लोग रेस कर रहे हो? नहीं, हम लोग डैनी क्रूगर के साथ हैं। वो वहाँ सुबरू में है वहाँ। हाँ। ओह, अच्छी कार है। बर्थडे केक की। हाँ। अब क्वार्टर फाइनल राउंड में सामने है ब्रैडफोर्ड हाई स्कूल से केंडाल। क्लिंट जॉनसन अपने 1969 चेवी शॉल से जो मुकाबला करेंगे डैनी क्रूगर उनकी तेज तर्रार कार का। क्लिंट अपने टायर से धुआं निकाल रहा है और डैनी अपनी तैयारी में है। इसमें जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। हमारे पहले सेमीफाइनल राउंड में हमारे सामने है एंड्रिया फॉस्ट, उनकी बेहतरीन कार में जो की है पैट्रियट हाई स्कूल से, और उनके सामने है जेक केंडाल अपनी तेज मस्टंग में जो कि ब्रैडफोर्ड स्कूल से है। सेमीफाइनल राउंड के लिए हमारे सामने हैं मैचेस और उनके डोरस्टेप, और उसके सामने है क्रूगर और उसकी SCI। कैसे हो तुम? हाँ, कैसे हो? कैसे हो तुम? ये है कैसे हो? टॉम ब्रिज। अच्छा, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने देखा तुम्हारे 3 विद्यार्थी हैं। अच्छी बात है। कौन जीतेगा कुछ अंदाजा? क्या यही तुम्हारा जवाब है? रिजल्ट्स अच्छे हैं, सब चेक कर लिया है। तुम तैयार हो ना? कैसा बेवकूफ है। सुनो, उसके पास ज्यादा टॉर्क है, इसलिए वो शुरुआत में तुमसे आगे निकलना चाहेगा। उस वजह से तुम भटकना मत, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन पर ध्यान दो। आखिर में उसे पीछे छोड़ देना और तुम रफ्तार पकड़ लेना। दोस्तों, इस हैरतअंगेज मुकाबले के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे।
ठीक हो ना? हाँ। डैनी क्रूगर ने उसे अंत में पकड़ ही लिया। देवी और सज्जनों, डैनी क्रूगर उसके आगे निकल गया है। उसने कर दिखाया। सभी के लिए आश्चर्य की बात है। यकीन नहीं होता कि छोटी सी सुबारू ने अपने आखिरी राउंड में जगह बना ली, लेकिन अब क्रूगर के सामने मुश्किल का पहाड़ है। जेक केंडाल का समय और रफ्तार दोनों डैनी से बेहतर रही हैं। डैनी को किसी चमत्कार की प्रार्थना करनी चाहिए या थोड़े और सिलेंडर्स की। ये तुम क्या कर रहे हो? बूस्ट बढ़ाना चाहता हूँ ताकि आखिरी दौर से भी तेज रह सकूं। डैनी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा टर्बो गर्म हो गया, वो कार की मोटर को उड़ा देगा। ये सिर्फ अब 22 PSI पर है, जिसे मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, जिससे काफी मदद मिल सकती है। तुम्हें पता है कार की रफ्तार कैसे बढ़ाई जा सकती है? कैसे? पावर शिफ्ट का इस्तेमाल करो। क्या ये खतरनाक नहीं है? अगर तुमने ज्यादा गड़बड़ नहीं की तो सब ठीक रहेगा। अब मुझे उस क्रूगर के बच्चे को जीतते हुए नहीं देखना है, समझ गए तुम? हाँ सर। सब तैयार है। नए टायर लगा दिए गए हैं और मफलर भी ऑन है। तुम्हें इससे ज्यादा रफ्तार मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत करना। क्या मुसीबत है? पावर शिफ्टिंग का क्या मतलब? थ्रॉटल को बिना बदले शिफ्ट करना। टर्बो कार्स में से इससे इंजन पूरे जोर में रहता है और इससे ज्यादा रफ्तार मिलती है, लेकिन ये बिजली की रफ्तार से करना होता है। अगर कोई गलती हुई तो धमाका हो सकता है।
सज्जनों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डैनी क्रूगर ने एनएचआर हाई स्कूल की प्रतियोगिता जीत ली है। बहुत खूब बच्चे, कमाल करते हैं। शुक्रिया। शायद तुम्हारा क्या ख्याल बुरा नहीं था। वो कौन सा? तुम दुकान को इम्पोर्ट परफॉर्मेंस शॉप में बदल देना। तुम भी आ जाओ।